This is Sajjad Ahmed Khan, the founder of Brilliant English Academy, a free online English coaching class for you. Dear student, in the last episode, we had learned about the history of English novel. Dear student, we had also learned about the 17th and 18th century novel. We had also seen about the first European English novel and first English novel, and we are focusing on immigrant novelist of the world and the most important role of feminist novelist in the language and literature. And dear student, we had also learned about Indian scenario regarding novel writing in India in past and present, and top novelists of the world and the best selling novels and their novelists. Dear student, in the second episode or in this episode, we are going to learn more about the structure of novel. That is very much important. So let's start our journey. Let's scroll few pages regarding novel in our second episode, that is History of English Novel Part 2. Dear student, for that again I remind you about the definition of a novel. According to the dictionary, a novel is a fictional prose narrative of considerable length, typically having a plot that is unfolded by the action, speech and thoughts of the character. The literary genre represented by novel. And now we are turning toward the word novella. A novella is the word originated from the Italian word, is a type of prose fiction which is shorter than a full length novel and longer than short stories. मतलब जो शॉर्ट स्टोरीज से बड़ा और नॉवेल से छोटा जो होता था लिटरेरी पीस, उसको नोवेला बोला जाता था. इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर 8 शॉर्ट नैरेटिव ऑफन सैटारिक और रियलिस्टिक इन टोन. इट इज़ यूजुअली फोकस ऑन वन इंसिडेंट और इश्यू विद 1 or 2 main characters and takes place at a single tradition. Some of the famous novellas in English are The Heart of Darkness by Joseph Conrad, The Turn of the Screw by Henry James, and Billy Buddy by Herman Melville, Death in Venice by Thomas Mann, Seize the Day by Solo Bello, Pearl by John Steinbeck. And now that is our second point, that is elements of novel or novella. There are 6 elements essentially of novel or novella. All these factors may be related to one another in the work by an author. Dear student, and the third part is theme. Theme is the central idea, you know very well, in the novel, which can be expressed in a nutshell. It is a philosophical statement or a truth which is the writer has put forth through the narration of the series of events in the story and characters एक्टिंग इन द पर्टिकुलर सेटिंग. थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि थीम के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी को बुना जाता था, जिससे राइटर को आगे के कैरेक्टर्स, उनके किरदार और कहानी की रचना के लिए थीम बहुत ज़रूरी होती थी और रीडर्स को भी वो पढ़ने में एक क्यूरियोसिटी होती थी. देन वी आर मूविंग टुवर्ड द प्लॉट. प्लॉट, व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट इज इसेंशियली द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट दैट मेक्स अप द थीम. मतलब थीम जो रिलेटेड होती है उसको बुनने के लिए, ओवन करने के लिए या किरदारों को इकट्ठा करने के लिए एक प्लॉट का होना ज़रूरी होता है. इट इज़ क्रिएटेड बाय द कन्फ्लिक्ट समटाइम और आइदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट. व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थीम, द 2 conflicts are more important. External, that is with other characters or entity, the relation between characters with other characters, especially protagonist and the sub character. And in internal part we are moving toward the inside the mind of the character. मतलब जहाँ पे हम फिजिकल तौर से एक्सटर्नल पार्ट देखते थे, तो मेंटल तौर से भी हमको उसको देखना होता था कि कैरेक्टरों का जो दिमाग में चलता है, जो बातें जिससे आगे के घटना क्रम होते हैं, इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर. प्लॉट में भी सिंपल वन प्लॉट, बहुत से नावल इसी के लिए जाना जाता है कि उसमें एक सिंगल थीम पर बेस्ड होता है, सिंगल प्लॉट होता है. कुछ कुछ नावल में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नावल में कॉम्प्लेक्स प्लॉट भी होते हैं, एक से ज़्यादा प्लॉट या सब प्लॉट भी उसमें होते हैं. देन नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड द कैरेक्टर्स. डियर स्टूडेंट, कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन नावल.
Characterization is related to the plot as the course of event take place because of the certain behavior of the characters. जैसे जैसे किरदारों के बिहेवियर पर ही कहानी आगे बढ़ती है, तो इसीलिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कैन रेंज फ्रॉम थंबनेल sketches to deep, wordy, highly and detailed verbal sketches. The important characters may have been described in its every aspect by the writer and the minor characters are not given much importance. हमने देखा है कि जो प्रोटोगोनिस्ट होता है उसी को ज़्यादा वैल्यू होती है कहानी में, चाहे वो फिल्में हो, ड्रामा हो, नॉवेल हो, और छोटे जो किरदार होते हैं, माइनर जो कैरेक्टर होते हैं, सब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कहानी को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, बट अहम किरदार तो प्रोटोगोनिस्ट या हीरो का ही होता है. द रीडर फॉलो द एक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स थ्रू आउट द नॉवेल. दिस कैरेक्टर इज रेफर्ड टू एज द प्रोटोगोनिस्ट. प्रोटोगोनिस्ट के माने होता है हीरो, हीरो ऑफ द स्टोरी, हीरो ऑफ द नॉवेल. प्रोटोगोनिस्ट मीन्स अ मेन कैरेक्टर. इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द कैरेक्टर्स और एन एंटिटी. और जो कन्फ्लिक्ट होती है, जो घटनाक्रम होता है, वो उसी के इर्द गिर्द होता है. और अ फोर्स, चाहे जो फोर्स हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो चाहे बाहरी, फिजिकल, भौतिक या अंदरूनी, मानसिक, तो ये भी चीज़ें हमारे प्रोटोगोनिस्ट पर, हीरो पर असर करती है, विच इज़ नोन एज एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट मीन्स अपोजिट ऑफ प्रोटोगोनिस्ट, दैट इज़ अ विलन ऑफ द स्टोरी. जहाँ हीरो होता है वहाँ पे विलन का होना भी उतना ही आवश्यक होता है. नाउ लेट्स turn toward the setting. What is setting? Setting is the background in which the story take place. सेटिंग की जब हम बात करते हैं तो सेटिंग का होना ज़रूरी है, क्योंकि कहानी का घटनाक्रम कहाँ हुआ है, घटना कहाँ घटी है, वो प्लेस क्या है, जगह क्या है. आइदर इट इज़ अ जंगल और अ कैसल और अ पैलेस और अ मार्केट और सिटी. सो इसलिए सेटिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है. तो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग. इट इंक्लूड प्लेस, पीरियड, टाइम. क्लाइमेट भी बहुत असर करता है सेटिंग पर, आइदर सीजन और वेदर कंडीशंस. ट्रेजेडी बताने के लिए हमको नाइट बताना पड़ता, अंधेरा बताना पड़ता, बारिश बताना पड़ता, एंड लाइफस्टाइल. तो ये सारी चीज़ें सेटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लॉट एंड कैरेक्टर्स आर द टू मेजर एलिमेंट्स. Plots and characters are two major elements that are affected due to setting. And next, that is conflict. Conflict means द्वंद्व in Marathi, tazaz in Urdu. The struggle between the opposite forces in the story is called conflict. जहाँ हीरो है वहाँ विलन है. Sometime villain is the situation, sometime villain is a kind of that destiny. Conflict in the story provide interest and curiosity about the plot. जैसे कहानी में ट्विस्ट आता है तो उसकी वजह होती है conflict. तो conflict इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहानी में. एंड नेक्स्ट दैट इज लैंग्वेज एंड स्टाइल. अब आपने देखा होगा द लैंग्वेज ऑफ द नॉवेल एंड द टेक्निक टू यूज बाय द ऑथर फॉर द नरेशंस ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट इज नोन एज स्टाइल. लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है, जो राइटर या लेखक की जो खूबी होती है, उसी को लैंग्वेज या स्टाइल कहा जाता है. और आपने स्पेशली नॉवेल में देखा होगा वेरी फेमस प्रोवर्ब्स, डायलॉग्स, phrases and quotes are used to explain the situation. An author can use extensive vocabulary and high phrases, or he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement. For meeting his purpose, he may use linguistic devices to make the narrative effectively. All these factors decide the texture of the narration and create an impact on the readers. तो लैंग्वेज का, उसके स्टाइल का, उसके वज़न का, उसमें उसकी खूबसूरती का होना नॉवेल में बहुत ज़रूरी होता है. अच्छे नॉवेलिस्ट को अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी की वजह से नॉवेल और उसकी कहानी दर्शकों को बांधे रखती है. अब हम मूव करते हैं. लेट्स सी मेजर टाइप्स ऑफ नॉवेल्स. देयर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ नॉवेल दैट आई हैड रीड in our textbook, but there are more types of novels too. So let's discuss both, and we have given importance to that are asked in our textbook. The first type of novel, that is epistolary novel. Second, picaresque novel. Then third, experimental novel. Fourth, novel of manners. Fifth, sentimental novel. Sixth,
Gothic novel, 7 historic novel, 8 social realism, and 9 part that is psychological या stream of consciousness novel. So these are the types of novel. As well, some novels types are included in our course books too. Let's see one by one. Epistolary novel. The word epistolary derives from the Latin word epistola, which means a letter. पत्र जिसको हम बोलते हैं, खत जिसको बोलते हैं उर्दू में. The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other documents. Although letters are the most common features or the basis of epistolary novel, sometimes diary, noting of that particular person, entries that he had taken about circumstances, about certain evidences, certain situations are also a popular form of the type. एपिस्टोलरी नावल के जो फादर माने जाते थे वो सैमुअल रिचर्डसन हैं, जिनका पामेला एक बहुत फेमस राइटर फॉर नावल है, क्लारिसा एक फेमस नावल है जिसमें एपिस्टोलरी नावल पर बेस्ड है, जहाँ पे पत्राचार खतों पर डिपेंड या कोई नोटिंग पर डिपेंड इसकी कहानी होती थी. इसका शॉर्ट में मैं फीचर बताऊँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे साइकोलॉजिकल रियलिज्म इसमें है, मल्टीपल पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाते थे, और इट इज़ बेस्ड ऑन लेटर्स, सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, allow authors to present feelings and reactions of the characters. So, and now we are turning toward the second part or type of novel, that is picaresque novel. Picaresque novel. The word picaresque means it is originated from the Spanish word picaro, which means a rogue. Rogue means picaresque novel. A picaresque novel narrate the adventure of the protagonist. पिकारेसिक नावल में जो प्रोटोगोनिस्ट होता था, हीरो जो होता था, उसका जो एडवेंचर होता था, उसकी जो बहादुरी होती थी, उसका जो शौर्य होता था, उस पर ये नावल बेस्ड होता था. हु इज़ एन इसेंट्रिक और अ डिसरेप्यूटेबल पर्सन. बहुत बार वो जो कैरेक्टर होता था कहानी का, प्रोटोगोनिस्ट होता था, वो बहुत ज़्यादा इनफेमस भी होता था, जैसे रॉबिन हुड है, बैटमैन है, तो इस तरह के भी कैरेक्टर वो प्ले होते थे उस ज़माने में इन एन एपिसोडिक फॉर्म. जस्ट लाइक इन पिकारेसिक नावल, जैसे हमारे यहाँ पे डैनियल डिफो का जो नावल है रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर, डॉन किक्सॉट, ये पिकारेसिक नावल के एक फेमस नावल माने जाते हैं. नेक्स्ट, मास्टर ऑफ पिकारेस्क नावल दैट इज़ हेनरी फिडेलिंग, जिनका हमने पढ़ा है नावल के बारे में, शामिला, जोसेफ एंड्रयू, टॉम जोन्स, ये बहुत ही फेमस नावल्स है उनके. बाद में सर वॉल्टर स्कॉट का द फादर ऑफ इंग्लिश नावल जिनको कहा जाता था, उनके भी कुछ नावल बहुत ही पिकारेसिक नावल में आते हैं. टोबिसा स्मॉलेट के रॉड्रिक रैंडम है, पेरिजेरिक पिकेल है, तो इस टाइप के नावल्स उसमें है. देन सेकंड दैट इज़ पिकारेसिक नावल के बाद पार्ट आता है प्रीकर्सर नावल. प्रीकर्सर नावल में जनरली हम देखते हैं मिडवेल या यूरोपियन और रोमन आर्थरियन टेल्स कल्मिनेटिंग इन मार्लोज और मॉर्टी डी आर्थर. तो प्रोस रोमांसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट पिकारेसिक नावल में होता था. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आपको लिस्ट दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं. दीज आर द फेमस नावल जस्ट लाइक जॉन लिलीज यूफस, द एंटोनिम्स ऑफ वीट. थॉमस लॉज का एक रोसेलिन नाम का नावल है. थॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर्स नाम का नावल है. जॉन बनी का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम का नावल है. ये प्रीकर्सर नावल है. प्रीकर्सर नावल के मीनिंग ये होता है कि वो रोगियो या फोर रनर होते हैं, मतलब घटनात्मक क्रम उसमें होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये लिखे जाते हैं. नेक्स्ट दैट इज एक्सपेरिमेंटल नावल, या जिसको हम मेटा नावल भी कहते हैं. एक्सपेरिमेंटल नावल मीन्स प्रात्यक्षिक नावल, जो प्रैक्टिकल चीज़ों पे बेस्ड होता है, तजुर्बों पे जो बेस होता है, एक्सपीरियंस पे जो बेस होता है. जहाँ पे लॉरेंस टर्न्स का एक ट्रिस्टर्न शैंडी नाम का एक नावल है जो 1759 में 9 वॉल्यूम में लिखा गया था. इसकी क्या खूबी होती है एक्सपेरिमेंटल नावल की? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक नावल इन इंग्लिश. रैम्बलिंग प्लॉट होता है इसका, मेडलिंग एंड मैडरिंग थर्ड पर्सन नरेशन होता है इसमें. फर्स्ट पर्सन नरेशन नहीं होता बल्कि थर्ड पर्सन नरेशन होता है. डिग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एज अ मेन प्लॉट.
एक्चुअल में ट्रैजिक होते हैं ये बहुत सारे नावल। फोर रनर फॉर मेनी मॉडर्न नैरेटिव डिवाइसेस, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नावल का नया टाइप है, हम आगे देखेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन है। मॉडर्निस्ट एंड प्रो मॉडर्निस्ट राइटिंग का इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूजन होता है, शुमार होता है। नाउ वी आर टर्निंग टूवर्ड दी सेंटिमेंटल नावल। अब सेंटिमेंटल मीन्स भावनात्मक, भावना प्रधान नावल। जैसे हमारी फिल्म में भी बड़ी भावना प्रधान होती है, भावनात्मक होती है, जिसमें इमोशंस भरपूर होता है, जिसमें फ्लड ऑफ टीयर्स होता है, जिसमें सॉरोज होता है, जिसमें पेन्स होता है, खुशी होती है। तो इस तरह के नावल को, इस तरह की कहानी को बताने के लिए सेंटिमेंटल नावल है। तो इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताता चलूँ। इट हाइटन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, सेल्फ इंटेलिजेंस एंड एलिवेटेड फीलिंग्स, कन्वेंशनल सिचुएशन उसमें होता है, स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, रिटोरिकल डिवाइसेस होते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ का द विकार ऑफ द वेकफील्ड ये बहुत ही फेमस नावल है जो सेंटिमेंटल में आता है। इमोशन इज टाउटेड एज सुपीरियर टू रीजन। हाँ, इमोशंस रीजन से बड़े बताए जाते हैं, मतलब जहाँ पे दिल का ज़्यादा बोलबाला होता है दिमाग के ऊपर। एक्सट्रीमली मॉरल एंड डिडैक्टिक, इसमें भावना प्रधान नावल में जनरली वो बहुत ही मॉरल बेस वैल्यूज पर होती है और डिडैक्टिक होती है, शिक्षा प्रदान भी होता है। और नेक्स्ट वी आर टर्निंग टू दी गॉथिक नावल। गॉथिक नावल की खास बात यह है, जस्ट सी टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ गॉथिक नावल। गॉथिक नॉवेल्स मीन्स द नॉवेल दैट इंक्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ, डिके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड द गॉथिक नॉवेल्स। गॉथिक नॉवेल्स आज भी उतने ही फेमस है, जिसमें मिस्ट्री है, थ्रिल है, ड्रामा है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स है, डेथ है, डिके है, और हॉन्टेड भूत और पिशाच पर बनने वाली जो नॉवेल्स है तो वो होता है। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताता चलूँ। जैसे इसमें मैजिकल होता है, मिस्ट्री होता है, हॉरर होता है, एक्सोटिक सेटिंग होता है, जैसे मिडवेल या ओरिएंटल पीरियड्स इसमें डिस्कस होता है। हमको हॉरेस वॉलपॉल का एक बहुत ही फेमस नॉवेल है कैसल ऑफ ओर्टेंटो, गीज ऑफ ट्रांसलेटेड लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन द डे ऑफ वेडिंग, उसमें ये थीम है। फैंटास्टिक रोमांस भी उसमें होते हैं, ब्लेंडेड टू काइंड्स ऑफ रोमांस, एक तो एंशियंट एंड द मॉडर्न वन। नेक्स्ट वी आर टर्निंग टूवर्ड दी सोशल रियलिज्म। अब वर्ड सोशल मतलब सामाजिक। सामाजिक नावल उस वक्त हमारे देश में दुनिया भर में पॉपुलर हुए थे जब इन्फ्लुएंस हुआ था दुनिया में 18th सेंचुरी रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद में हमारे यहाँ पे सोशलिज्म, समाजवाद, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद ये बढ़ने लगा था, जहाँ पे मजदूरों को, मिडिल क्लास लोगों के प्रॉब्लम उजागर होने लगे थे, उनके सामाजिक प्रॉब्लम पर नॉवेल लिखे जाने लगे थे और यही उसका बेसिक थीम होता था। सोशल और सोशोलॉजिकल नॉवेल डील विद द नेचर, फंक्शंस एंड इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी विच द कैरेक्टर इनहैबिट ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग रिफॉर्म। तो वहाँ पे रिफॉर्म भी होता था। जैसे हम लोग अगर बात करें उस ज़माने के मशहूर नॉवेलिस्ट और नॉवेल्स की, तो चार्ल्स डिकिंस का एक नावल है हार्ड टाइम, गैस्केल्स का मेरी बार्टन नाम का एक नावल है, इलियट्स का एक बहुत ही मिडल मार्च एक बहुत फेमस नावल है, स्टीनबेक्स का ग्रेप्स ऑफ रैथ एक बहुत फेमस नावल है जो सोशल इश्यूज़ पर है। आज भी सोशल इश्यूज़ पर नावल लिखे जाते हैं और जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं। जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी एक सोशल इश्यूज़ पर लिखा हुआ नावल है अरुंधति रॉय का। स्लेवरी एंड रेस ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था जनरली 17th एंड 18th सेंचुरी में, क्योंकि हमारी दुनिया में जो नस्लवाद था, रंगवाद था, वर्णभेद था, स्पेशली अफ्रीका और अमेरिका में, उसमें ब्लैक लिटरेचर में इसको बहुत ज़्यादा जगह है। इवन हमारे देश में स्पेशली भारत में हमारे यहाँ पर ब्लैक नॉवेल्स को भी लिखा जाने लगा है, जिसको हम दलित साहित्य में इसका शुमार होता है। और बहुत सारे नॉवेल्स इसमें बहुत फेमस है। अमेरिकन नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो स्टोस अंकल टॉम्स कैबिन 20th सेंचुरी का ये नावल है बाय राइट्स एंड एलिसन। तो ये बहुत ही सोशल अप्रोच और सोशल रियलिज्म पर बेस्ड नावल है। साइकोलॉजिकल नावल, अब साइकोलॉजिक नावल मीन्स जो मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से लिखा हुआ ये नावल है, जहाँ पे साइकोलॉजी को, मानसिक अवस्था को या स्थिति को बयान किया जाता। साइकोलॉजिकल नावल इज़ द वर्क ऑफ फिक्शन that treat the internal life of the protagonist or even other character as much as the external part, जहाँ पे साइकोलॉजी में एक द्वंद्व होता है अंदरूनी और बाह्य, मतलब हमारे मन में और हमारे दिल में ये जो चीज़ें चलती रहती है वो नॉवेलिस्ट पर बहुत इफेक्ट या इम्पैक्ट करती है। तो ये नावल जो है साइकोलॉजिकल नावल, ये मानसिक
पर बहुत ही बेस्ड होता है और आजकल ये फिक्शन बहुत ही फेमस है. देन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवेल, द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नॉवेल, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. What does it mean? Stream of consciousness is a phrase coined by William James in his treatise Principle of Psychology that was written in 1890. It means the flow of thoughts, मतलब भावनाओं का प्रवाह जिस नॉवेल में होता है. इंसिडेंट इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस. इंसिडेंट जो होते हैं वो वन बाय वन क्रोनोलॉजिकली या ऑकरेंस में पाए जाते हैं और जहाँ पे भावनाएं जुड़ी हुई होती है एक इंसिडेंट से, एक कहानी से दूसरे कहानी की तरफ. द नॉवेलिस्ट नरेट देम एज देयर इंटर द माइंड ऑफ द कैरेक्टर. और जो राइटर जो है वो हमारे किरदारों पर, इवन रीडर पर भी, उनके दिमाग पर भी वो असर करता है. इतना इफ़ेक्टिवली वो सोशल कॉन्शियसनेस को उजागर करता है. जैसे इसके जो पायोनियर है इस नॉवेल टाइप के, वो जेम्स जॉयस ही है, जिसका एक बहुत ही फेमस नावल है द डस्ट द डबलिनर्स. उसके बाद में पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट यूलिसिस. उसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस, उनका एक बहुत ही फेमस नावल है जो इस सीक्वेंस में आता है. मिसेस डेलोय, ओरलैंडो, ये उनके खास नावल्स है इस थीम पर. नाउ वी आर टर्निंग टूवर्ड दी ऑटोबायोग्राफिकल नावल. आपको तो पता है कि ये ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो आत्मवृत्त है, या उसको उर्दू में सवाने हयात या सवाने उम्री बोला जाता है, जो किसी शख्स पर जो खुद ऑटो मीन्स आय, ये लैटिन वर्ड है, जो शख्स जो व्यक्ति अपने लाइफ पर बेस्ड इवेंट्स पर कुछ लिखता है, स्पेशली नॉवेल टाइप, दैट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल. द ऑटोबायोग्राफिकल नावल इज़ द नावल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर. However, the author changes the place and name of characters. हाँ, कभी कभार वो अपने जगह किसी और का नाम यूज़ करता है. And the names of characters or even may changes or avoid certain details of his life. बहुत बार exaggeration होता है उसमें, या कभी कभार वो बहुत सारी चीज़ें छुपा भी देता है because it creates some problems to others. तो it may or may not be in the first person narration. और autobiographical novel फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखे जाते हैं. दैट नाउ वी आर टर्निंग टूवर्ड दी हिस्टोरिकल नावल. हिस्टोरिकल नावल वर्ड से ही पता चलता है कि ऐतिहासिक नावल है. अ हिस्टोरिकल नावल इज़ अ नावल सेट इन द पीरियड अर्लियर दैन दैट ऑफ द राइटिंग. अगर आज आप शिवकालीन इतिहास लिखेंगे, संभाजी महाराज के बारे में लिखेंगे, या मुग़ल एम्परर्स के बारे में लिखेंगे, या रोमन एम्परर्स के बारे में लिखेंगे, तो हम लोग आज लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग जो लिख रहे हैं वो ऐतिहासिक व्यक्तियों पर, घटनाओं पर. तो दैट वाज द हिस्टोरिकल नावल. दुनिया भर में हिस्टोरिकल नावल बहुत फेमस है. तो यहाँ पर हमने आपको लिस्ट भी दी है, जैसे सर वॉल्टर स्कॉट का द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल नावल जिनको कहा जाता था, उनका वेवलरी नॉवेल्स इवन हो इवोक द एटमॉस्फियर ऑफ वैनिश एरा, तो इस पर है. नाउ वी आर टर्निंग टूवर्ड द मोस्ट कॉमन नॉवेल टाइप ऑफ 19th century, दैट इज़ बिल्डिंग्स रोमन नावल. बिल्डिंग्स रोमन नावल क्या होता है ये टाइप? ये हिंदुस्तान में भी बहुत फेमस था, स्पेशली हिंदी उपन्यासकार जो बहुत फेमस है, जैसे वेद प्रकाश शर्मा है, मनोज है, जेम्स हेडली चेस, उसके भी बहुत थ्रिलर्स और नावल्स आते थे. और ये नावल्स की खास बात ये होती थी कि बड़े बड़े मोटे मोटे वर्जन्स होते थे बुक्स, जिसका कागज़ बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का होता था और जिसका कवर पेज बड़ा अट्रैक्टिव होता था. तो ये 19th century के फेमस नावल्स है. द जर्मन वर्ड बिल्डिंग्स रोमन indicate the growth. The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist's mind, spirit and characters from their childhood to adulthood. In the first half of the 20th century, a cult of pulp magazines became popular in which fantastic fictions for the general entertainment of the masses वैप्स प्रिंट ऑन द चीप पल्प पेपर. मैंने कहा है आपको कि वो हल्के क्वालिटी के पेपर पर लिखे जाते थे. 20th century में भी ये नॉवेल्स बहुत फेमस थे. द पल्प फिक्शन एरा प्रोवाइड अ बिल्डिंग्स रोमन ग्राउंड फॉर द डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन. जनरली ये थ्रिलर, मर्डर, मिस्ट्री,
इसी पर बेस्ड होते थे। साइंस फिक्शन एक बहुत ही फेमस पार्ट है हमारे 20th सेंचुरी का। इज अ जॉनर ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शंस डीलिंग विद द इमेजिनेटिव कंसेप्ट सच एज फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, भविष्य में क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी पर क्या है, स्पेस में क्या है, साइंस के क्या नए नए इवेंट्स आते हैं, क्या क्या उसमें इन्वेंशंस हो सकते हैं। तो ऐसा मिस्टोरिकल और थोड़ा इमेजिनेटिव टाइप से ये नावल को लिखा जाता था। टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इसमें डील होती है। साइंस फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द साइंटिफिक एंड अदर इनोवेशंस। फ्रैंकस्टीन्स बाय मेरी शेले, ये बहुत फेमस साइंस फिक्शन है, इज कंसिडर द फर्स्ट नावल ऑफ बिल्डिंग्स रोमन नावल। यूटोपियन और डिस्टोपियन नावल, ये भी एक नेक्स्ट टाइप है। यूटोपिया means is an imaginary community or a society possessing ideal qualities. It is a common literary theme, especially in science fiction और speculative fiction. तो ये यूटोपियन और डिस्टोपियन नावल का एक लिखने का तरीका है जो इमेजिनरी पार्ट है हमारी कम्युनिटी का या सोसाइटी का, जिस पर ये कहानियाँ बेस्ड होती थी। देन वी आर मूविंग टुवर्ड द एलिगरिकल नावल। एन एलिगरी मीन्स व्हाट? It is a story that bears more than one level of meaning. The surface meaning of such a novel is different from the symbolical meaning of it. The symbolical meaning of an allegorical novel may be political, religious, historical और philosophical. मतलब किरदार कुछ और है, कहानी कुछ और है। जैसे एक जॉर्ज ऑरवेल का नावल मैं पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ, एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म में कैरेक्टर तो एनिमल है, बट इट इज़ अ सटायर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम of the then time that was beautifully penned down by George Orwell in Animal Farm. तो इस तरह का allegorical नावल है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द मोर truthful realistic novel, that is the realistic novel is a fiction that gives the effect of realism, जिसमें सत्य पर आधारित होता था। Sometimes this is called a novel of manners. It can be characterized by its complex characters with mixed motives that are rooted in the social class. The character in the realistic novel interact with other characters, undergo plausible and everyday experiences. So dear student, hope you all learn in 2 parts about the types of novels and the structure of novel. Dear student, I have given you brainstorming activities. If you watch all or first part or second part, it is very easy task for you to solve that brainstorming activities. Hope dear student you like my presentation, and don't forget to subscribe my channel, press the bell icon, and in description box I have given you a test on it, so please go in description box and solve the test on our topic. Hope you like my presentation. Dear student, please like, share and comment, and don't forget to press the bell icon and subscribe my channel for forthcoming presentation.